Maitri does not endorse any businesses, including but not limited to legal attorneys, financial advisors, and tax consultants that may be advertised before or after the show. Listeners are advised to use their own discretion. Hello everyone, welcome to the Maitri Show Between Friends. In this show, we will be talking about different issues related to intimate partner violence, family violence and abuse, gender-based violence, and power dynamics in relationships. The goal of our show is to engage our community members in addressing and challenging those harmful social and cultural conditions, norms that make intimate partner violence, family violence and abuse, and other gender-based violence acceptable. We believe our show Between Friends will mobilize our community in ending victim blaming and preventing violence and abuse in partner and familial relationships. In each episode, we will be providing insights and resources that will not only help victims and survivors, but also educate our community members about these issues. These resources and that are available in the community so that they can help someone in need. Tune in every Saturday from 3 to 4 p.m. on Radio Zindagi to listen to the Maitri Show Between Friends. You can also find all episodes of Maitri's Between Friends on our website, Maitri Bay Area Facebook page, and on SoundCloud. Don't miss our show. You can email your suggestions and feedback to us at maitri@maitri.org. MAITRI. Together, we can end domestic violence, intimate partner violence, and gender-based violence. Hello listeners, you are on the Maitri Show Between Friends, and at this episode, we will be discussing legal issues that survivors of domestic violence, especially survivors from marginalized communities, face. When someone is going through familial violence, partner violence, and abuse, seeking out legal help or even understanding legal system can be very difficult. Prolonged legal battles can turn into an abuse of their own. So getting right attorneys, having right kind of legal information, guidance, assistance, right understanding of individuals' rights and options can have a huge impact on each case. In this episode, we want to focus on legal matters, information, and resources that can help in reducing the occurrence of domestic violence and or the repetition of violent incidents. To be consistent with our organizational policy that is providing language access to South Asian immigrant survivors, we have decided to do some of our radio shows episodes in South Asian languages. So we are presenting today's show in Hindi. And at this show, we have Shabana Ansari. Shabana has been working as the legal advocate at Maitri for last 5 years. She has bachelor degrees in law and social work from Mumbai University, India. Before joining Maitri, she practiced law in Mumbai and Chennai. Prior to practicing law, she worked as a social worker for about 7 years with various human rights organizations. Today, Daman Thiwana will be in conversation with Shabana. Daman is the Maitri Outreach Associate, and Daman and Shabana will be presenting this show in Hindi. हेलो शबाना जी, कैसी हैं आप? मैत्री शो पे आने के लिए शुक्रिया। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। आप कहाँ से हैं और आप कैसे मैत्री से जुड़ी? बहुत बहुत शुक्रिया दमन, मुझे ये मौका देने के लिए और यहाँ बुला के जानकारी शेयर करने के लिए। सभी लोगों को, मेरा नाम शबाना अंसारी है। मैं मैत्री में पिछले 5 सालों से लीगल एडवोकेट की भूमिका निभा रही हूँ। मेरा बैकग्राउंड इस तरह से है कि मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री की है और उसके साथ साथ में मैंने सोशल वर्क कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है। मैत्री से जुड़ने से पहले मैंने 2 साल बॉम्बे और चेन्नई कोर्ट में प्रैक्टिस की है और उससे पहले मैंने करीबन 7 सालों तक मानवीय अधिकार संस्थाओं के साथ में महिलाओं के इशू को लेकर घरेलू हिंसा, महिला और स्वास्थ्य मुद्दे और बच्चों के और शिक्षण अधिकार के मुद्दों पर काम किया है। शुक्रिया शबाना। जैसे कि आपने कहा कि आप मैत्री में एक लीगल एडवोकेट है, तो हमारे लिसनर्स को मैत्री के लीगल एडवोकेसी प्रोग्राम के बारे में प्लीज थोड़ा बताएं। मैत्री के लीगल प्रोग्राम से घरेलू हिंसा से पीड़ित
दक्षिण एशियाई लोगों को मुफ्त, गोपनीय और संपूर्ण सेवाएं दी जाती है। मैत्री का लीगल प्रोग्राम 2006 में शुरू हुआ और 2011 से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से हमें एक्रीडिटेशन मिला, जहां पर हम घरेलू हिंसा के साथ साथ में घरेलू हिंसा से पीड़ितों को इमिग्रेशन असिस्टेंट भी हमने देना शुरू किया। हमारा लीगल प्रोग्राम से ना सिर्फ हम उन्हें लीगल कानूनी जानकारी देते हैं, बट उसके साथ साथ में ज़रूरत पड़ने पे उन्हें लीगल एक्सपर्ट से भी संपर्क कराते हैं। कम्युनिटी एजुकेशन, हम बाहर जाकर लोगों को घरेलू हिंसा, इमिग्रेशन राइट्स और कैसे वो सांस्कृतिक सक्षमता के बारे में समझ सके, उस बारे में जानकारी देते हैं। और उसके साथ साथ में हम लीगल क्लिनिक भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर हमारे जो क्लाइंट है, जो हमें फ़ोन करके हमसे मदद लेने आते हैं, उनको ज़रूरत पड़ने पर लीगल अटर्नीज के साथ में कांटेक्ट कराते हैं, संपर्क कराते हैं, ताकि वो अपने इशू को या जो उनके जो मुद्दे हैं उनको चर्चा कर सके और उनका साधन पा सकें। बहुत बढ़िया शबाना, आप जो इतनी मदद कर रहे हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों की। आप हमारे लिसनर्स को ये आपका जो लीगल एडवोकेसी का प्रोसेस है उसके बारे में और थोड़ी जानकारी दे सकती है? और जो लोग कानूनी मदद के लिए मैत्री के पास आते हैं, आप कैसे उनकी सहायता करते हैं? ज़रूर, शुक्रिया। मैत्री का लीगल प्रोग्राम के एक 3 ब्रॉड अम्ब्रेला है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हम लीगल एडवोकेसी करते हैं, उसके बाद में इमिग्रेशन असिस्टेंट और तीसरा पॉलिसी एडवोकेसी। लेकिन आज मैं यहाँ पर एज अ लीगल एडवोकेट हम लीगल एडवोकेसी में क्या करते हैं उस बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है कि जब भी हमें कोई भी कॉल करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि हम ये जाने कि वो सुरक्षित है। तो हम सुरक्षित योजनाओं के बारे में उनसे बात करते हैं, उनको समझ के लेते हैं कि हम ये बातचीत जो हम कर रहे हैं वो उनके लिए सेफ है या नहीं। दूसरी, कोई भी व्यक्ति जब हमें फ़ोन करता है और भाषा का अगर उन्हें सवाल है या अंग्रेज़ी बोलने में दिक्कत होती है और उनको लगता है कि वो अपनी मदर टंग में या मातृभाषा में बात करना चाहते हैं, तो वो समझ के लेते हैं और उसके अनुसार हम उनको वो भाषा में मदद करते हैं। मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर हमें किसी ने कहा कि मैं सिर्फ तेलुगु बोलती हूँ और मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तो उस तरह से हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे संपर्क में हमारे स्टाफ में तेलुगु बोलने वाले हैं, और अगर स्टाफ में कोई मौजूद नहीं है उस समय पे, तो हमारा अच्छा खासा वॉलंटियर पूल है, उसमें से हम कांटेक्ट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्लाइंट को उनसे चर्चा करने मौका मिले, ताकि वो अपने बारे में बात कर सके और क्या मदद चाहिए वो हम समझ सके, और उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ साथ में लीगल एडवोकेसी में क्लाइंट जब हमसे संपर्क करते हैं, तो लीगल उनके सवाल जो होते हैं उनको समझ के उस तरह से उनको जानकारी देने में हम मदद करते हैं। जैसा कि मैं कह रही थी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो लोगों को लीगल प्रोसेस के बारे में जागृति देना और उनको जानकारी देना, लेकिन हम कोई भी ऐसे समय में उन्हें कोई भी तरह की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा रोल उनको जानकारी देना है ताकि वो इंफॉर्मेशन समझ के अपने फैसला अपने आप से कर सकें। लीगल एडवोकेसी में जो अलग अलग और जो सेवाएं हैं, हम लोगों को निरोधक आदेश अगर चाहिए, जिसे हम रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कहते हैं, जहां पर उनको सेफ्टी को लेकर सवाल है और वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम उनके रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पेपर वर्क करने में मदद करते हैं। उसी तरह से हम उनके फैमिली लॉ में अगर उनको पेपर वर्क करना है तो हम उसको मदद करते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए हम ये ज़रूर कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे रिसोर्स लिस्ट में हमारे साथ में काफ़ी वकील हैं जो घरेलू हिंसा के बारे में समझते हैं और उन्होंने ट्रेनिंग ली है। क्लाइंट की इच्छा के अनुसार हम वकील को कांटेक्ट करते हैं ताकि वो उनके पेपर वर्क रिव्यू कर सके, और अगर उनको कोई फीडबैक है उसके अनुसार हम उसमें चेंजेस लाके फिर क्लाइंट को कहते हैं कि वो कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। लीगल एडवोकेसी की जो और अलग सुविधाएं हैं वो इस तरह से है कि अगर हम कोर्ट में क्लाइंट को एज अ सपोर्ट पर्सन अकम्पनी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता नहीं है तो डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, अगर उनका कोर्ट में केस चल रहा है तो वो कभी भी अपने साथ में एक सपोर्ट पर्सन कोर्ट में लेके जा सकते हैं। हालांकि वो सपोर्ट पर्सन की भूमिका ये है कि वो सिर्फ क्लाइंट को इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ भावनात्मक मदद कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट में उनके लिए कुछ भी बोल नहीं सकते हैं।
दूसरा ये है कि इंटरप्रिटेशन सर्विस, जो भाषा के मैंने कहा है कि जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी सारे इमिग्रेंट सर्वाइवर के साथ में हम काम कर रहे हैं और अंग्रेजी भाषा को लेके लोगों के काफ़ी चिंता होती है और वो डर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि मुझे भाषा नहीं आती है, मुझे मदद कैसे मिलेगी। तो उस तरह से हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं या के कोर्ट में आप इंटरप्रेटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब भी आपकी हियरिंग हो, और अगर क्लाइंट को उसमें दिक्कत है तो हम कोर्ट को कांटेक्ट संपर्क करके उनकी रिक्वेस्ट करने में मदद करते हैं। अगेन मैं फिर से ये दोहराना चाहती हूँ कि जब भी हमें कोई भी क्लाइंट आप फोन करते हैं या करना चाहते हैं तो हम आपकी सहायता ताकि आपको लीगल प्रोसेस के बारे में समझा सके, खासकर कैलिफोर्निया के लीगल सिस्टम में। क्योंकि अगर आप समझती हैं कि जो ऑलरेडी इतने सारे दुखों से गुजर रहे हैं और ऑलरेडी परेशान हैं, उनके लिए कोर्ट में कुछ भी जैसे ही कोर्ट लीगल का नाम सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं, तो उनको परेशानी होती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और उस तरह से वो हमको जब फ़ोन करते हैं तो हम ये उनकी आसानी करते हैं ताकि उनको समझ में आए और बहुत साधारण भाषा में उनको बताते हैं जो चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट के वेबसाइट पे मौजूद हैं। तो मैं एक उदाहरण देती हूँ कि अगर हमें किसी क्लाइंट ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मुझे लीगल प्रोसेस के बारे में समझना है कि यहाँ पर डिवोर्स कैसे होता है, तो अगर मैंने उनको जब मैं उनका कॉल बैक करती है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं उनसे कहूँगी कि सबसे पहले जो है कोई भी यहाँ पर डिवोर्स फाइल कर सकता है, और लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कैलिफोर्निया में जो रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट हम कहते हैं कि रहीवासी होना बहुत ज़रूरी है, कि कम से कम उनको कैलिफोर्निया में 6 महीना और कोई भी एक काउंटी में 3 महीना रहना ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा किसी को सेंटा क्लारा काउंटी में सैन होजे कोर्ट में केस फाइल करना है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम 3 महीने तक सेंटा क्लारा काउंटी में रह रहे हैं। अभी ये सारी जो जानकारी मैं दे रही हूँ ये ऑलरेडी कोर्ट के वेबसाइट, फॉर एग्जांपल courts.ca.org, ये वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। दूसरी और womenslaw.org, ये वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन जब कॉलर हमें फ़ोन कर रहे हैं या हमसे संपर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत चिंता होती है कि अभी मैं क्या करूं। तो उस समय पे हमारा रोल आता है कि हम कैसे उनको शांति से ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकें ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे उनको समझ में आए। धन्यवाद शबाना, ये जानकारी शेयर करने के लिए। आप इस सब में सपोर्ट देते हैं, ये बहुत बड़ी मदद होती होगी उनके लिए जो घरेलू हिंसा से गुजर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं तो ये है मैत्री शो बिटवीन फ्रेंड्स और मैं हूँ दमन। आज यहाँ पे इंटरव्यूइंग शबाना जो कि मैत्री पे एक लीगल एडवोकेट है। हम अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आते हैं जल्दी ही अपने आगे के सेगमेंट के साथ। अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं, कृपया मैत्री से संपर्क करें। मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं। हमारी सेवाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं। You can call us Monday to Friday 9 to 3 p.m. on 188-862-4874. For after hours, leave voicemail in your language. You can also email us at maitri, maitri@maitri.org. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी पे मैत्री शो बिटवीन फ्रेंड्स। ये है टीम मैत्री और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल एडवोकेसी प्रोग्राम शबाना के साथ। शबाना, ब्रेक से पहले आपने बताया कि आप क्लाइंट्स के साथ काम करती हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि जो आपके क्लाइंट हैं वो क्यों आते हैं मैत्री के पास? ऐसे क्या कारण है कि जिसकी वजह से क्लाइंट मैत्री को संपर्क करते हैं? थैंक यू दमन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो कॉलर्स हैं या क्लाइंट जब हमको संपर्क करते हैं, पहले तो यह है तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ समझना होता है कि यहाँ पर प्रोसेस क्या है, कोर्ट कैसे वर्क करता है और उनके क्या ऑप्शंस है और क्या अधिकार है और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि काफ़ी लोगों के ऑलरेडी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और उनको पता नहीं है क्या करना है। उस तरह से वो हमको कांटेक्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो उस अपने केस में किस तरह से मदद ले सकते हैं। सिचुएशन ऐसी भी होती है कि काफ़ी बार लोगों को अपने सेफ्टी को लेकर सवाल है और उनको लगता है कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना है, तो काफ़ी कॉल्स हमारे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एडवोकेसी या निरोधक आदेश एडवोकेसी को लेकर भी होती है, जहां पर उनको ये समझना होता है कि वो कैसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले सकते हैं फैमिली कोर्ट से या क्रिमिनल कोर्ट से, और उससे किस तरह से उनको मदद मिल सकती है या किस तरह से सुरक्षा के ऑर्डर मिल सकते हैं।
मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी यहाँ पर कि हमारे जो कॉल्स हैं या जो क्लाइंट हमको कॉल करते हैं वो ना सिर्फ कैलिफोर्निया से कॉल करते हैं बल्कि दक्षिण एशियाई के अलग अलग देशों से और शहरों से भी फ़ोन करते हैं और यूएस के अलग अलग सिटीज़ से और शहरों से, प्रदेश से भी हमको कॉल आते हैं जहाँ पर उनको ये समझना होता है कि उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा हो रही है और उनको समझना है कि वो आगे क्या कर सकते हैं। काफ़ी बार कॉल सिर्फ ये भी इसलिए भी आते हैं कि वो सिर्फ किसी से बात करना चाहते हैं क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि हम दक्षिण एशियाई देशों की को सेवा कर रहे हैं और उनकी भाषा और उनके सांस्कृतिक को समझते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए हम उनकी मदद करेंगे। इस तरह से हमें अलग अलग कॉल्स आते हैं और कोई भी हमें हमारी सेवाएं सभी के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि ये सेवाएं जो भी डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से पीड़ित है वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। जैसे कि आप बता रही है आपके काफ़ी क्लाइंट दक्षिण एशिया से हैं, क्या ऐसे कुछ खास चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां हैं जिनका साउथ एशियन यानी कि दक्षिण एशियाई सर्वाइवर्स को सामना करना पड़ता है, खास तौर पर जब वो कोर्ट सिस्टम और कानूनी कार्रवाई में है? हाँ, ये सवाल काफ़ी हैं जो कठिनाई हमें दिखाई देती है या समझ में हमारे सामने आती है। सबसे पहले ये है कि अगर आप हम हमारे शुरू के चर्चा में अगर जाएं तो हमारी सर्विसेज में काफ़ी इमिग्रेंट हमें फ़ोन करते हैं। तो जब कोई न्यू इमिग्रेंट यहाँ पर आए हैं और उनके यहाँ के सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि काफ़ी बार लोग घर में घरेलू हिंसा हुई है और 911 को फ़ोन किया जाता है। उसके बाद में जब पुलिस आती है और उनको लगता है कि हाँ घर में फिजिकल वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट करके लेके जाती है और वो काफ़ी शॉकिंग हो जाता है जब क्लाइंट उनको फ़ोन करती है क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार जो मैंने सुना है उन कहते हैं कि मैंने फ़ोन तो सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो पुलिस आके उसको डरा दे, धमका दे और वो मुझे परेशान ना करे और ना मुझ पे हिंसा ना करे। बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है। अगर फिजिकल वायलेंस हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो पुलिस अगर घर पे आके ये देखती है तो वो अरेस्ट करके लेके जाएगी। तो वो एक चैलेंज है। दूसरा ये है कि फैमिली लॉ को लेते हुए लोगों के लिए जो आपको पता है कि डिवोर्स जो है हमारे सोसाइटी में या हमारे संस्कृति में बहुत मुश्किल है लोगों के लिए और बहुत स्टिग्मा लेकर आता है। तो लोगों को बहुत चिंता होती है जब भी डिवोर्स के बारे में, डिवोर्स अगर कोई एक स्पाउस फाइल कर रहा है कोर्ट में तो या फाइल करने की धमकियाँ दे रहा है तो अगर डिवोर्स फाइल होता है और उनको पेपर मिलते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं है और उनको लगता है कि अगर जब तक मैं पेपर पे साइन नहीं करूँगी मेरा डिवोर्स नहीं होगा, वैसा नहीं है। यहाँ पर रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट है, कोई भी डिवोर्स फाइल कर सकता है, 6 महीना और 3 महीना कैलिफोर्निया में। लेकिन हाँ, अलग अलग प्रदेश में या स्टेट्स में प्रोसेस फैमिली लॉ के अलग होते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में वो प्रोसेस है। तीसरा ये है कि लोगों को लगता है काफ़ी बार हमारे अनुभव में कि हमें कहा गया है कि बट हमारी शादी तो पर्सनल लॉ के तहत हुई है तो ये यहाँ पर मुझे डिवोर्स कैसे मिल सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर फैमिली कोड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई, जो आम भाषा में मैं बोलूँगी कि सबके लिए सेम कानून है। तो यहाँ पर आपकी शादी किस एक्ट के तहत या आपके पर्सनल लॉ के तहत हुई है वो इतनी मान्य नहीं रखती है। इसलिए वो समझाना, वो इन्फॉर्मेशन देना कि डिवोर्स फाइल हो सकता है, वो उसको समझने के लिए बहुत वक्त लगता है और वो तैयारी करने के लिए कि ये आगे होगा या हो रहा है उनके साथ में। और जो चुनौती हमने देखी है स्पाउसल सपोर्ट, जो हम हमारे मुल्कों में शायद उसे मेंटेनेंस और एलिमिनी कहते हैं। यहाँ पर जो स्पाउसल सपोर्ट जो दी जाती है वो बेस्ड ऑन दोनों पार्टी की इनकम कोड देखती है कि किसकी सैलरी कितनी है और उस हिसाब से स्पाउसल सपोर्ट कैलकुलेट होता है। ना कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप महिला हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा अधिकार है और उसे मुझे लाइफ टाइम एलिमिनी देना है, यहाँ के अनुसार कैलिफोर्निया के, क्योंकि कैलिफोर्निया एक कम्युनिटी प्रॉपर्टी स्टेट है और स्पाउसल सपोर्ट जो है बेस्ड ऑन आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है उसके अनुसार हाफ ऑफ द लेंथ जैसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी शादी को 2 साल हुआ है तो आपको स्पाउसल सपोर्ट कम से कम 1 साल का मिलेगा, लेकिन वो भी बेस्ड ऑन कि आप दोनों में से काम करने के बाद में दोनों को अपनी अपनी इनकम और जो अलग एक फॉर्म के थ्रू से आपको वो इन्फॉर्मेशन कोर्ट को लिख के शेयर करनी है और उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होके कोर्ट अपना फैसला देती है। थैंक यू शबाना ये सब जानकारी शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जो हमारे लिसनर्स आज सुन रहे हैं उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा।
और साथ ही मैं आपकी बातें सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए जो इस सब से गुजरते हैं। ये घरेलू हिंसा, लॉ नया है नए देश में, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम्स है, और ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर भी होता है जो और भी इस सबको मुश्किल बना देता है। ऐसे में हमारे सोसाइटी के लोग, समाज के लोग कैसे मदद कर सकते हैं उस व्यक्ति की जो इस सब से गुजरते हुए ये कानूनी कार्रवाई में उलझे हुए हैं शायद, और किस हद तक वो उस व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी घरेलू हिंसा के बारे में बताना कि मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है, और लोगों को ये विश्वास अपने आप में लेने के लिए कि मैं कैसे किसको जाके बता सकती हूँ। तो अगर एज अ सोसाइटी और एज अ कम्युनिटी और एज अ फ्रेंड जो आप जब भी किसी को इस तरह से देख रहे हैं कि जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है या उनके मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, अगर सर्वाइवर्स आपके पास आते हैं तो सबसे पहले जो है आपको उन पे विश्वास करना है कि वो जो कह रहे हैं मैं उनकी बातें सुन रही हूँ और उनके लिए मौजूद हूँ और उनको समझ रही हूँ। क्योंकि सबसे पहला कदम वही होता है कि कौन मेरी बात सुनेगा कि मैं ये कह रही हूँ कि मुझ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो उन पे विश्वास करना वो सबसे ज़रूरी है और वो पहला है। दूसरा ये है कि जब भी आपको लगता है कि आप उनको मदद कर सकते हैं तो उनको इमोशनल सपोर्ट देना है, क्योंकि वो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको ये महसूस हो कि हाँ मेरे साथ में कोई है, कोई मेरी बात समझ सकता है और मैं उनके पास जाके ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। जैसा कि आपने शुरू में कहा आपके सवाल में कि काफ़ी सारे जो हमारे वासी हैं यहाँ पर वो इमिग्रेंट है, तो नया शहर, नए लोग, नया लॉ, नया देश, नए नेबर्स, तो वहाँ पर किसी पे विश्वास जो लाना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं कैसे किस पे भरोसा करूँ और कैसे किसको बताऊँ। और जिस तरह से अगर आप देखते हो कि पीड़ित दर पीड़ित ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को, घरेलू हिंसा को हमेशा ये कहा गया है कि ये घर का मामला है, आपको ये किसी को बताना नहीं है। तो अगर कोई पहला कदम लेके सोच रहा है कि मैं कैसे आके इसके अपने बारे में बताऊं और किसके पास जाऊं, तो अगर कोई आपके पास आ रहा है तो प्लीज़ उन पे विश्वास करें, उनको सहायता दें, उनको आश्वासन दें कि आप जो वो आपसे जो शेयर कर रहे हैं उनको आप समझ रहे हैं और आप उस पर उनको जज नहीं करेंगे, ना कि सवाल करेंगे कि पहले आप मुझे बताओ कि आपने क्या किया। नहीं, आप सिर्फ उनको बोलें, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उनकी आवाज़ सुने और शायद आप के लिए वो पहला स्टेप है कि वो आपसे बोल के और फिर उसके बाद में आप देखें कि किस तरह से उनको आप आगे मदद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको वेट करना है जब तक सामने वाला आपके पास आके मदद नहीं मांग रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ हो रहा है, लेकिन आप वेट करें कि जब तक वो तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो तैयार नहीं है तो आगे कुछ नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए वेट करें। जब उनको लगता है कि मैं तैयार हूँ और मैं मदद लेने के लिए आ रही हूँ, तब आप उनसे बात करें और शेयर करें। और उस तरह से अगर आपको लगता है, आप जानते हैं किसी संस्थाओं को जो आपके घर के करीब या काउंटी के करीब है, आप उनका रिसोर्सेज उनको दें, क्योंकि संस्थाओं के जो नियम है या जिस तरह के वो प्रोसेस फॉलो करते हैं कि आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो पहला ये है कि आप उनको फ़ोन नंबर दें। अगर उनके पास फ़ोन नहीं है और आप कंफर्टेबल है तो अपना फ़ोन दे के उनको कहे कि आप बात कर सकें। और जैसा कि मैंने कहा कि भाषा का सवाल नहीं है, क्लाइंट भले अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन वो फ़ोन करके बोल सकते हैं कि मुझे हिंदी में बात करना है या मुझे पंजाबी में बात करना है। मैत्री में हम मेक श्योर करते हैं कि वो भाषा बोलने वाला व्यक्ति, एडवोकेट, उनके लिए अवेलेबल हो ताकि वो अपनी बात कर सके और अपनी परेशानी को शेयर कर सके। तीसरा ये है, संस्थाएं जो हैं जो घरेलू हिंसा में के साथ में जो काम कर रही हैं, वो समझती हैं कि किस तरह से सर्वाइवर्स को मदद करनी है, उनके पास रिसोर्सेज है। तो आपका काम वहाँ है कि जब आपके पास वो मदद लेने के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपने उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है या आप जिस तरह की भी मदद कर सकती हैं आप उनको करें, लेकिन किसी भी तरह की सलाह नहीं दे कि आप ये करो, क्योंकि सलाह देना वो हमारा काम नहीं है। जब तक उनको वो प्रोसेस समझ में नहीं आता है, वो जब अपनी जिम्मेदारी, अपने ऑप्शन समझ के फिर वो आगे अपना फैसला लेंगे कि मुझे क्या करना है। दूसरा ये है, आखिरी का जो चौथा पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस संस्थाएं जो वो प्रिविलेज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी को लेके कि हम गोपनीय रखते हैं हर सभी की बातें हम गुप्त रखते हैं, हम किसी को बता नहीं सकते जब तक क्लाइंट हमको परमिशन नहीं दे रही है कि आप मेरी बातें किसी से शेयर कर सको। तो अगर उदाहरण देती हूँ, अगर कोर्ट से कभी कोई सबीना आया, तो अगर कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस संस्थाओं को सबीना दिया है तो
ऑर्गेनाइजेशन हम प्रिविलेज है, हम कहेंगे कि हम नहीं आ सकते हैं या हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं क्योंकि क्लाइंट ने हमको अपनी परमिशन नहीं दी है। लेकिन आप एक व्यक्तिगत है और आप उनके साथ में जुड़े हुए, आप उनको मदद कर रहे हैं और अगर कोर्ट ने आपको सबीना किया है तो आपको लागू है कि आपको कोर्ट में जाके वो बात करना है। तो आप वो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिविलेज एज अ व्यक्ति आपको नहीं मिलता है, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रिविलेज है। आखिरी में एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने पहले दोहराया है, वापस दोहरा रही हूँ। घरेलू हिंसा और की ऑर्गेनाइजेशन जो संस्थाएं हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो ट्रेंड है, उनको समझ में आता है कि कब कैसे और कहाँ मदद करनी है और कैसे क्लाइंट को किस तरह की मदद देनी है। क्लाइंट को ऑप्शंस देना ताकि वो अपना फैसला कर सके, थोड़ा समय लगता है, हम वो जानते हैं। इसलिए हम सभी जो एडवोकेट हैं वो 40 आवर ट्रेनिंग ली है हमने, ताकि हमको समझ में आए कि किस तरह से ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड होके हम उनकी मदद करना है। तो आप सारे ऑप्शंस उनको बताएंगे और जब जैसे ही वो तैयार होती है उस तरह से हम उनको आगे उनके कार्रवाई में या केस में या जो भी उनके सवाल हैं उसमें मदद करते हैं। शुक्रिया शबाना। मुझे लगता है जो अभी आपने शेयर किया है हमारे लिसनर्स के साथ ये बहुत अच्छी जानकारी है और मुझे उम्मीद है कि वो जो सब अभी इसको सुन रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और साथ के साथ वो किसी सर्वाइवर को जज करने की जगह आगे आकर समझदारी से उनकी मदद करेंगे। शबाना, अब हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। जो हमारे लिसनर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये है मैत्री शो बिटवीन फ्रेंड्स और आज शबाना हमारे साथ लीगल एडवोकेसी प्रोग्राम डिस्कस कर रही है। ब्रेक के बाद हम ये डिस्कशन जारी रखेंगे। अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं, कृपया मैत्री से संपर्क करें। मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं। हमारी सेवाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं। यू कैन कॉल अस मंडे टू फ्राइडे 9 to 3 PM on 188-862-4874. For after hours, leave voicemail in your language. You can also email us at maitri@maitri.org. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मैत्री शो बिटवीन फ्रेंड्स। ये है टीम मैत्री और हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल एडवोकेसी प्रोग्राम शबाना के साथ। शबाना, अब तक हमने बात की लीगल प्रोसेस के बारे में, पर अब हम थोड़ा इमिग्रेशन की बात करते हैं। हमारे सोसाइटी के बहुत लोग अप्रवासी, जिनको हम इमिग्रेंट्स कहते हैं, जो साउथ एशिया के अलग अलग देशों से आए हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य देश, और बहुत तरह के वीज़ाज़ के बारे में हम सब जानते ही है। और तभी भी मुझे लगता है कुछ ऐसे वीज़ाज़ है या ऐसे इमिग्रेशन स्टेटस है जिनकी सबको जानकारी नहीं है। तो आपके लिए मेरा सवाल ये है कि इमिग्रेशन स्टेटस किसी व्यक्ति के जो घरेलू हिंसा से गुजर रहे हैं, उनके कोर्ट एक्सेस पे, उनके कानूनी कार्रवाई पे किसी तरह का प्रभाव डाल सकते हैं क्या? बहुत बहुत शुक्रिया दमन। तो इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि कोई भी व्यक्ति अपने लीगल सवाल को लेके या परेशानी को लेके, या अगर वो घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, उसके लिए कोर्ट में या पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए ना कि उनके पास कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है या उदाहरण के तौर पर वो H4 स्टेटस है तो उनको पुलिस से मदद नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। इस तरह से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन जो हम कहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लीगल सर्विस जो है वो अवेलेबल है सभी के लिए, और सभी व्यक्ति बेस्ड ऑन अगर उनका कोई भी इमिग्रेशन स्टेटस हो, वो पुलिस को या कोर्ट के पास अपनी सवाल या अपनी चिंता या अपने ज़रूरत को लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति अनडॉक्यूमेंटेड है और उनको पुलिस से मदद लेनी है और उनको ये जानना है कि वो क्या कर सकते हैं अपनी मुश्किल को लेके, या जो उनके पास जो मुश्किलात अभी हो रही हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि ज़रूरी है कि वो पहले एक इमिग्रेशन अटर्नी से बात करें ताकि उनके जो ऑप्शंस हैं वो समझ के लें, और उसके बाद में वो पुलिस से मदद ले सकते हैं या कोर्ट से मदद ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि कोई भी सर्वाइवर अपनी ज़रूरत के लिए ज़रूर पुलिस के पास या कोर्ट के पास मदद लेने के लिए जा सकता है। उनको कोर्ट की तरफ से या पुलिस वो इमिग्रेशन स्टेटस उनका नहीं पूछेंगे और उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, और सिर्फ इसलिए उनको वो उसके लिए मनाही नहीं की जाएगी कि वो ये सर्विस या सुविधा नहीं ले सकते हैं। तो आप जो कह रही हैं कि अगर कोई इंसान H4 पे है, जैसे कि आपने एग्जांपल दी थी, तो वो एक डिपेंडेंट वीज़ा हो जाता है, तो उनको उस केस में डरने की ज़रूरत नहीं है।
मैंने ये कहा कि वो अपनी मदद के लिए एक्सेस कर सकते हैं, उनको मनाही नहीं होगी कि वो मदद नहीं मांग सकते हैं। लेकिन अगर उनको ये सवाल जानना है कि मेरा H4 स्टेटस है और अगर इसके बाद क्या होगा, उसके लिए मैं कहूँगी कि वो एक इमिग्रेशन अटर्नी से कंसल्ट करें और अपने ऑप्शन समझ के लें कि ये करने से क्या होगा। लेकिन मैं ये जैसा जो आपका सवाल है कि वो एक्सेस ज़रूर कर सकते हैं कोर्ट सिस्टम को और पुलिस को ज़रूरत पड़ने पे अपनी मदद के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना है कोर्ट से, मैं उदाहरण दे रही हूँ, अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना है तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वो कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकती हैं, मांग सकती हैं। वहाँ पर उनका इमिग्रेशन स्टेटस नहीं आता है क्योंकि उनकी सुरक्षा जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। ये जो सब कानूनी कार्रवाई होती है, जैसे कि लॉयर्स और अटर्नीज हायर करना, ये एक सर्वाइवर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए काफ़ी महंगा हो जाता होगा। तो क्या कुछ ऐसे मुफ्त सेवाएं या रिसोर्सेज हैं हमारे कम्युनिटी में जो उनके लिए उपलब्ध है? काफ़ी सेवाएं मौजूद हैं यहाँ पर पीड़ितों के लिए, क्लाइंट्स के लिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कोर्ट में सेल्फ हेल्प सेंटर अवेलेबल हैं। तो कोई भी काउंटी में, फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण दूंगी वापस से, सेंटा क्लारा काउंटी अगर मैं लेती हूँ या अलामीडा काउंटी आप ले ले, तो कोर्ट के अंदर फैमिली कोर्ट में सेल्फ हेल्प सेंटर है जहाँ पर कोई भी जाके वहाँ सेल्फ हेल्प अटर्नी से मिलके अपने फॉर्म के बारे में या उनको अपने सवाल केस के बारे में अगर चर्चा करना है तो वो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हर एक काउंटी में काफ़ी और संस्थाएं भी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के पीड़ितों को लिए मदद कर रही हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। ये सभी संस्थाओं की इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज की इंफॉर्मेशन अगर आप सेंटा क्लारा काउंटी कोर्ट वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ अवेलेबल है। दूसरी, हर काउंटीज़ ने आजकल फैमिली जस्टिस सेंटर ओपन किए हैं जो वॉक इन सेंटर्स होते हैं। वहाँ पर जाके आप फैमिली लॉ अटर्नी या अलग इमिग्रेशन अटर्नी और डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के ऑफिस से, अगर आपका कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के ऑफिस से कोई वहाँ बैठता है ताकि आप वहाँ पर जाके उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी सर्विस सुविधाएं जो है अलग अलग सिटीज़ में या काउंटीज़ में मौजूद है। सेम अलामीडा काउंटी के फैमिली जस्टिस सेंटर में भी ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। अगर आप कोर्ट के वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पर प्रो बोनो सर्विसेज या लो बोनो सर्विसेज वैसी संस्थाओं की इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। और इमिग्रेशन सर्विसेज को लेके अगर आप USCIS वेबसाइट पे जाएंगी तो वहाँ पर भी उन सभी संस्थाओं की जानकारी लिखी हुई है जो क्लाइंट को, जो लोगों को इमिग्रेशन सर्विस में मदद कर सकते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि लॉयर ढूंढना पड़ेगा एक व्यक्ति को जो इस सब से गुजर रहे हैं, तो कैसे मैं मेक श्योर करूँ कि जो लॉयर मैंने ढूंढा है वो भरोसे लायक है, ट्रस्टवर्दी है? ये सवाल काफ़ी बार आता है और सबसे पहले जब हमें कॉल आते हैं या क्लाइंट से हम साथ में काम कर रहे हैं तो उनको लगता है कि मेरे लिए लॉयर होना बहुत ज़रूरी है, मुझे लॉयर से बात करना है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने ऑप्शन समझें और उसके बाद में लॉयर से संपर्क करें। तो अलग अलग रास्ते हैं। लोग येल्प पे देखते हैं, वहाँ पर जाके लोगों के पर्सनल रिव्यूज़ पढ़ते हैं और उनसे उनको लगता है कि ये लॉयर कैसा है, उस तरह से आप उस लॉयर के संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी वकील को ढूंढना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेट बार ऑफ कैलिफोर्निया की वेबसाइट पे जाएं और पहले ये देखें वो वकील का नाम टाइप करके कि वो वकील वहाँ पर लाइसेंस या रजिस्टर्ड है या नहीं। दूसरा ये है कि अगर आपने कुछ वकीलों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं या आपने कल इनको मुझे बात करना है, तो जब आप उनसे बात कर रहे हैं तो अपने सवालों को तैयार करके उन सभी वकीलों को आप जब पूछते हैं उसके बाद में आप उनके जवाब क्या मिले हैं उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। आप बेझिझक और बिना किसी मुश्किल से उनको पूछ सकते हैं अगर आप वकील के कि उन्होंने कभी इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस केसेस पहले किए हैं या अगर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस के मुद्दे पे कोई ट्रेनिंग वगैरह ली है ताकि उनको समझ में आए कि किस तरह से वो डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से पीड़ितों की मदद या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा मैं कहूँगी कि अगर जब आपने डिसाइड किया कि मुझे इस वकील के साथ में काम करना है या मैं इनको हायर करना चाहती हूँ तो आप मेक श्योर करें कि आप उनका अग्रीमेंट ठीक से पढ़ें, उनके बिलिंग स्ट्रक्चर्स देखें और फी स्ट्रक्चर, रीड द रिटेनर अग्रीमेंट, वो देखें कि किस तरह से वो आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर और आपका रिश्ता है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस तरह से वकील यहाँ काम करते हैं वो हमारे देशों से, जहाँ से हम आए हैं वहाँ से डिफरेंट है। मैं उदाहरण इंडिया का देती हूँ। वहाँ पर जब लोग काम करते हैं वकील के साथ में तो वहाँ का फीस स्ट्रक्चर अलग है।
लेकिन यहाँ पर वकीलों के जो अग्रीमेंट होते हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो अलग अलग है। काफ़ी बार लोग फ्लैट फी बोलते हैं, या रिटेनर अग्रीमेंट में वो आवरली करते हैं, या बिलेबल आवर्स जो भी है उसको ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि और वकीलों को जब आप कांटेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ उनको अपने कानूनी सवाल या अपने केस से रिलेटेड जो सवाल है उसी के लिए आप बात कर रहे हैं, आप उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। और मेक श्योर कि आप उनको 10 दिन में 10 बार कांटेक्ट हर एक छोटे छोटे सवाल के लिए नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा है काफ़ी बार लोग कहते हैं कि बट मेरा बिल इतना कैसे बढ़ गया। तो हम कहेंगे कि आप जाके अपना अग्रीमेंट देखें, क्योंकि यहाँ पर वकील जो है वो अगर बिलेबल आवर्स हैं और जितना समय वो आपके केस पे डाल रहे हैं, ना सिर्फ कोर्ट में रिप्रेजेंट करके, बल्कि अगर आपसे बात कर रहे हैं या आपके ईमेल का जवाब दे रहे हैं, वो सब काउंट होता है। तो उसके बारे में मैं कहूँगी कि आप थोड़ा ध्यान दें। जो कैलिफोर्निया कोर्ट वेबसाइट पे, स्टेट बार ऑफ कैलिफोर्निया की एक वेबसाइट पे एक डॉक्यूमेंट है, हाउ टू हायर एन अटर्नी, और अलग अलग रिसोर्सेस है। वहाँ से मैं कुछ पॉइंट बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मुझे समझना है कैसे वकील हायर करना है, तो आप मेक श्योर करें कि वहाँ के वो पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि मुझे कैसे समझ में आया कि ये वकील मेरे लिए बेस्ट है, या ये मेरे हित में काम करेगा और ये मेरी मदद करेंगे। तो आप जब उनसे सवाल करते हैं तो आप अपने सवालों की लिस्ट बनाएं, उनको फ़ोन करें और उनसे फ्री कंसल्टेशन मांगे। ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कंसल्टेशन जो है वो 15 मिनट से आधे घंटे तक होता है। दूसरा ये है कि आप बेझिझक उनसे और पूछ सकते हैं कि उनके क्या अनुभव है इस तरह के केस में, और अगर वो शेयर कर सकते हैं कि इस तरह के केस में क्या हो सकता है। तीसरा ये है कि आप जो भी आपको वकील जवाब दे रहे हैं, आप थोड़ा सा वक्त लगाएं और उनको समझें कि उन्होंने आपको क्या बताया और आपको क्या लगता है कि आपको क्या किस तरह से वो करना है या आगे बढ़ना है। तो आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूँगी इस मामले में कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है, आपसी जो चर्चा करने का जो स्वभाव है वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप वकील से बात कर रहे हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं, आपकी ओपिनियन को या उसको महत्व दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि, और उसके अनुसार वो आपको ऑप्शंस बता रहे हैं कि आपके ऑप्शंस क्या है और किस तरह से आप अपने केस के लिए खुद मदद कर सकते हैं। शुक्रिया शबाना, आपने बहुत ज़रूरी बातें शेयर की हमारे साथ। और मुझे लगता है सिर्फ घरेलू हिंसा के केस में ही नहीं, हम सब अपनी लाइफ में भी कभी अगर वकील ढूंढ रहे हैं, कोई अटर्नी ढूंढ रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए। शबाना, मेरा अगला सवाल आपसे ये है भाषा को लेकर। जो लोग दक्षिण एशियाई देशों से आते हैं वो हमेशा इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। वो कई बार होता है कि इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल पाते हैं, बट इस लेवल की नहीं होती है कि वो कोर्ट सिस्टम को मैनेज कर सके उसके साथ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी मातृभाषा में लिख पढ़ और बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आता है तो कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी सवाल आपने कहा है, और लिसनर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज एक्सेस जो है वो सभी को मिलना ज़रूरी है, और उसकी सुविधा उपलब्ध हर कोई जो गवर्नमेंट फंडिंग लेता है उनको देना ज़रूरी है। उदाहरण, अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपको कोई दक्षिण एशियाई भाषा आपको चाहिए, तो आप कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट उसको प्रोवाइड करना उनका जिम्मेदारी है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सभी दक्षिण एशियाई भाषाएं जो है वो कोर्ट के पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो भाषाएं कोर्ट इंटरप्रेटर प्रोवाइड करते हैं। मैत्री किस तरह से मदद करते हैं लैंग्वेज भाषाओं की सुविधा के लिए? एक तो ये है कि हमारे इंटरनल जो है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, कि कोई भी भाषा को लेके दक्षिण एशियाई भाषा की अगर ज़रूरत है तो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हम कोर्ट में जाके एज एन एडवोकेट हम कोर्ट में इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रोल जो है वो कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स को इमोशनल सपोर्ट या उनका सपोर्ट पर्सन बन के रहना है, ना कि इंटरप्रिटेशन करना। और हम ऐसी कोई दुविधा में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने उदाहरण अगर आपने कोर्ट में इंटरप्रिटेशन करने के लिए बोला है और दोनों पार्टी कोर्ट में इंटरप्रिटेशन मांग रही है, तो कोर्ट आपको कहेगा कि आपको दोनों पार्टी को इंटरप्रिटेशन करना है या इंटरप्रेटर प्रोवाइड करना है, लेकिन वो हमारा रोल नहीं है। हमारा रोल एज एन एडवोकेट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की तरफ से हम उनको सपोर्ट करने के लिए गए हैं, और
हाँ, हम ज़रूर उनको बाहर आके कोर्ट के बाहर आके हम उनको बताते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन हम कोर्ट के अंदर इंटरप्रेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन हम ज़रूर अपने नेटवर्क में ये अगर कोई इंटरप्रिटेशन की रिक्वेस्ट आई है तो और वो भाषा कोर्ट के पास नहीं है और हमको कोई रीच आउट करता है तो हम अपने विद इन नेटवर्क में वो इंफॉर्मेशन करते हैं और उनको कहते हैं कि वो कोर्ट से कनेक्ट करें। शुक्रिया शबाना ये जानकारी शेयर करने के लिए। आज हमारा टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो आपके लिए मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई खुद या फिर उनके कोई जानकार घरेलू हिंसा के शिकार हैं तो वो मैत्री की जानकारी कैसे ढूंढ सकते हैं? थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। और हम सभी लिसनर्स के लिए मैत्री की इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्ट के वेबसाइट पे अवेलेबल है, सेंटा क्लारा कोर्ट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। दूसरी ये है कि अगर आपने पुलिस से आपका अगर रब्ता हुआ है और पुलिस आपको जब इंफॉर्मेशन कार्ड देती है उसके पीछे भी हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के ऑफिस में हमारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि हम एक दक्षिण एशियाई संस्था है और घरेलू हिंसा के लोगों को मदद कर रहे हैं। तीसरा ये है कि हमारा बहुत एक्टिव सोशल मीडिया पेज है कि लोग हमको फेसबुक से और इंस्टाग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिरी दो चीज़ें हैं कि हम काफ़ी कम्युनिटी आउटरीच करते हैं जहाँ पर हम कम्युनिटी में जाके लोगों को घरेलू हिंसा के बारे में अवेयरनेस और जागृति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर लोग उस तरह से हमको लोग संपर्क करते हैं। और आखिरी जो हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ कि अगर किसी को हमारे बारे में पता है वो दूसरे जिनको ज़रूरत है उनको बताते हैं। और अगर हमने किसी के साथ में काम किया है और उनके सामने कोई आके मदद मांगता है तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं और इस तरह से हमको कॉल करते हैं। आप कोई भी हमको फ़ोन कर सकते हैं 1888 मैत्री। और जो कहूँगी कि आप किसी के लिए भी फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था में जिसको मदद चाहिए हम चाहते हैं कि वो हमको फ़ोन करे और अपनी मदद खुद मांगे कि उनको किस तरह की मदद चाहिए। और लीगल एडवोकेसी के अलावा हमारे अलग अलग प्रोग्राम हैं जिसके बारे में आप हमारे वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं। और उस तरह से प्लीज़ हमको ज़रूर संपर्क करें। या आपको लगता है कि कोई इस तरह से गुजर रहा है और उनको मदद चाहिए तो आप उनको हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो हमसे कांटेक्ट या हमसे संपर्क कर सकें। शबाना आपने बहुत ज़रूरी जानकारी शेयर की आज हमारे लिसनर्स के साथ। ये जो लीगल प्रोसेस है ये किसी आम व्यक्ति के लिए भी बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, और ऊपर से अगर आप घरेलू हिंसा जैसी चीज़ से गुजर रहे हैं तो ये और भी कठिनाई आपके लिए हो सकती है। और मुझे उम्मीद है कि जो लिसनर्स आज हमें सुन रहे हैं अगर वो किसी ऐसी घरेलू हिंसा से गुजर रहे हैं या वो किसी को जानते हैं जो उस घरेलू हिंसा से गुजर रहे हैं तो उनकी कुछ मदद किया हमने आज। हमारा आज का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म है, पर जाने से पहले आपके पास कोई लास्ट कमेंट्स हैं हमारे लिसनर्स के लिए, या फिर आप अपने अनुभव से कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कैसे आपके क्लाइंट्स ने आपको कांटेक्ट किया है या उनकी कुछ फीडबैक, कुछ भी जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर सकती हैं आज। मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। हम जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि हमारे जो कॉलर्स हैं या जो हमसे संपर्क करते हैं वो ना सिर्फ कैलिफोर्निया से होते हैं बल्कि अलग अलग दक्षिण एशियाई मुल्कों से भी हमको फ़ोन आता है या कांटेक्ट करते हैं। और हमने जो क्लाइंट है अगर वो मैं उदाहरण दूंगी, अगर भारत में है तो भारत के में रह के और उनका केस यहाँ पर चल रहा है कैलिफोर्निया में या अलग स्टेट में या अलग सिटीज़ में, वहाँ पर भी हमने उनको मदद करने की कोशिश की है। मैं एक उदाहरण दूंगी कि हमारी एक क्लाइंट ने जब हमको फ़ोन किया वो कैलिफोर्निया में थी, लेकिन उनके स्पाउस ने उनको कहा कि आप इंडिया जाओ और मैं आपको थोड़े वक्त के बाद में बुलाता हूँ। लेकिन वहाँ जाने के बाद में उनका कुछ भी संपर्क नहीं हो रहा था और वो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी अपने स्पाउस को। और इस तरह से उन्होंने मैत्री को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में हमने थोड़ी जानकारी ली और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी परमिशन लेने के बाद में हमने कोर्ट के वेबसाइट पे अगर चेक किया, क्योंकि अगर आपको पता है कि कोई भी केस कोर्ट में जब फाइल होता है वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन होता है तो मालूम पड़ता है कि कोर्ट में केस कब फाइल हुआ और कहाँ फाइल हुआ। तो वो करने के बाद में हमने क्लाइंट को हमने बताया कि इस तरह से केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है और ये हो चुका है। तो हमने पूछा कि उनको क्या यहाँ से कोई पेपर मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको कोई भी पेपर नहीं मिले हैं कैलिफोर्निया कोर्ट से।
और एक जो मैं बात बताना चाहती हूँ जो प्रोसेसिंग के बारे में है, अगर मैंने शुरुआत में नहीं कही तो मैं अभी बता रही हूँ कि जैसे जब भी कोई केस फाइल होता है उसकी पेपर जो है वो सामने वाले को मिलना, दूसरी पार्टी को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम कहते हैं कि वो प्रोसेस में है। तो अगर वो पेपर मिले हैं और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो बात केस उस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आपने कभी पेपर नहीं मिले हैं और हमने ये देखा कि यहाँ पर इस केस में जो पिटीशन किया है उन्होंने डिफ़ॉल्ट ऑर्डर के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि क्लाइंट को ऐसे लगा कि जब तक मैं साइन नहीं करूँगी मेरा डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस तरह से हमने क्लाइंट की परमिशन लेने के बाद में एक वकील से कांटेक्ट किया, कोर्ट में जाके फिर हमने उनके पेपर निकाले, उनके रिस्पॉन्सेस फॉर्म्स को उनको कहा कि वो वहाँ से हमको फिल आउट करके हमको दे, और फिर हमने वो कोर्ट में जाके उनके लिए हमने कोर्ट में सबमिट किया। क्लाइंट को ऑल्सो हमने वकील के साथ में कांटेक्ट कराया जिन्होंने वो डिफ़ॉल्ट को रोकने की कोशिश की और वो कोर्ट ने अलाउ किया। तो एक ऐसे सक्सेसफुल स्टोरीज हमारे पास, तो हमने उस तरह से काम किया। हर साल हम हमारे जो प्रोग्राम के बारे में हम एक इवैल्यूएशन करते हैं ताकि हमको लोगों के फीडबैक मालूम पड़े कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से हमारे काम में हमें अगर कुछ बदलाव लाना है या क्या और हम कर सकते हैं। तो कुछ कमेंट्स है जो हमारे क्लाइंट के हैं, अनोनिमस है, वो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। अंग्रेजी में है क्योंकि उन्होंने इस तरह से हमको लिख के भेजा है। एक क्लाइंट का कमेंट इस तरह से है: With Maitri, I personally feel it's a God blessing to you having Maitri in your life, as they support you, boost your confidence, helps you on daily basis to come out of your stress and legal matters. I personally feel that few years back when I came in, I was so nervous. I did not know what I'm gonna be doing. But being with Maitri has given me so much of confidence and made my life better. Another comment from our client, anonymous: I have had a great experience working with Maitri. I had no idea how to come out of my situation and get my life together. Starting from managing my finances to helping me plan my career, they have helped me throughout. I'm very grateful to them. ये इस तरह से जब हमें फीडबैक मिलता है तो और हमारी उत्साह बढ़ती है और हमें और लगता है कि और किस तरह से हम हमारी सेवाओं को बेहतर और उन सभी को पहुंचा सके जो सच में ज़रूरत है। तो मैं अपना आखिरी कमेंट इस पे ख़त्म करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत है और आप परेशान हैं और आपको समझना है आप क्या कर सकती हो और आपके क्या ऑप्शंस है, प्लीज़ हमें फ़ोन करें। धन्यवाद। थैंक यू शबाना अपना एक अनुभव शेयर करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कमेंट्स आपको मिलते हैं फीडबैक में वो भी शेयर किए हमारे लिसनर्स के साथ। थैंक यू आज शो पे आने के लिए, और थैंक यू लिसनर्स हमारे शो पे ट्यून इन करने के लिए। आप प्लीज़ हमें संपर्क करें 1888-862-4874 और आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं maitri@maitri.org और हमारा एक्टिव मैत्री बे एरिया फेसबुक पेज है, आप वहाँ से भी हमको संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों हमें सुनना ना भूलिए हर हफ्ते सैटरडे को 3 to 4 PM रेडियो जिंदगी पे। अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं जो घरेलू और डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं, कृपया मैत्री से संपर्क करें। मैत्री की सेवाएं बिल्कुल मुफ्त और विश्वसनीय हैं। हमारी सेवाएं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती और अन्य दक्षिण एशियाई भाषाओं में उपलब्ध हैं। You can call us Monday to Friday 9 to 3 PM on 188-862-4874. For after hours, leave voicemail in your language. You can also email us at maitri@maitri.org. Maitri does not endorse any businesses, including but not limited to legal attorneys, financial advisors, and tax consultants that may be advertised before or after the show. Listeners are advised to use their own discretion. The Maitri helpline number is 1-888-8-MAITRI or 1-888-862-4874. Email us at maitri@maitri.org.